टाइप्स ऑफ मिनरल्स ओनली वी हैव कंप्लीटेड ना, डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ाना था. टाइप्स ऑफ मिनरल वाज कंप्लीटेड. सोर्सेज ऑफ अकरेंस आल्सो हैव गिवन इन द प्रीवियस क्लास ना, although it is not given in your book. Okay, I have given you what is mineral, what are the types of mineral, what is the source of occurrence of mineral, which is not mentioned here, but I have taught you. Can anyone tell me the sources through which minerals are found? दीपक बता सकते बेटा, मिनरल्स कहां कहां से पाए जाते हैं? मैंने शायद 5 डिफरेंट सोर्सेज बताए थे आपको. मुझे 2 नाम बता दीजिए फटाफट ताकि मैं आगे बढ़ सकूं. जल्दी जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं. अगर आप लोगों ने लिख रखा होगा तो आपको पता होगा. ये श्रेष्ठ, लिटिल लाउडर. नो, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द रीजंस, आई एम आस्किंग अबाउट द सोर्सेज. सोर्सेज ऑफ द अकरेंस ऑफ मिनरल्स. यस, कैन यू? Okay, okay, very good. Coastal areas, coastal sands, absolutely it is correct. Very good beta. Is it correct Sanjana? Yes. So 5 different sources I have taught you about the sources of the occurrence of mineral. What are that source है? थोड़ा सा सुन लीजिएगा आप लोग भी दोनों. अगली बार ये मत कहिएगा कि नहीं मालूम है. ठीक है? What are the sources of occurrence? So there are the 5 different sources. Igneous rock, which is also called as the primary rocks. Sedimentary rocks. In igneous rocks, they are found in vents or it is found in lodes. In sedimentary rocks, it is found in layers. Okay. After that, weathered rocks, जो rocks टूट गए हैं weathering process की वजह से, उन टूटे हुए rocks में भी जो minerals हैं, वहां से जो हम निकालते हैं, that is called by weathered rocks. Placer deposit, which is brought down by rivers from the hilly areas and deposited in the plain areas, that is placer deposit. And the last one is coastal areas. When the sea waves or the ocean currents are coming in the coastal areas, they are bringing so many different kinds of minerals along with them. So these are the 5 different sources through which we are extracting minerals. After that, I have given you what are those different reasons. What are those different reasons or areas from where the minerals are extracted? So those areas, those reasons are 4 mainly in our country. Northeastern region, Eastern region, Central Eastern region. Okay. Then after here, Southern part and Western region. ये आपके 4 मेन क्षेत्र हैं. अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, तो स्पेशली मेघालय, Assam Valley. These are the areas. In the central part here, in the eastern region, your Chotanagpur Plateau region. Southern areas, Deccan Plateau, and in western, Rajasthan and Gujarat area. So these are the areas where the resources are deposited. After that, we have to cover these all things already I have given you. I have given the differences also. So after that, we have to cover about the distribution of minerals in India. It's okay. Achha, why one question is given here? Why and where Dandi March was organized by Mahatma Gandhi? First, give me where? Gujarat. Why? For the manufacturing of soil. Sorry, salt. For the manufacturing of salt. ठीक है, salt को बनाने के लिए. Why he has decided to make salt? To break the laws which was imposed by Britishers. Salt law. ठीक है ना, जिसके तहत नमक कानून के तहत यह अधिकार मिल गया था कि अब सिर्फ ब्रिटिशर्स इस नमक बनाएंगे, साथ ही साथ उसके ऊपर उन्होंने टैक्सेस भी इम्पोज कर दिया था. चलिए कोई बात नहीं, अब हमें वो नहीं पढ़ना. लेट डिस्कस अबाउट दैट. Major distribution of minerals. Mainly, what are those different types of minerals and where they are found? यहाँ पर मैं साथ साथ आपको लिखती हुई जाऊंगी. ठीक है, मैंने इस पेज को इसलिए किया है कि ताकि कुछ जो अंडरलाइन करवाने हैं आपको अंडरलाइन भी करवाऊं, साथ साथ हम लोग इसी पेज के ऊपर लिखेंगे भी और आप लोग कॉपी में वही नोट डाउन करेंगे जो मैं आपको बोलूंगी. सारा कुछ नोट डाउन नहीं करना है. ठीक है,
तो पढ़ने के साथ साथ हमारा लिखने का काम भी चलता रहेगा। इसको साइड में रख लेते हैं। इट्स ओके। बुक मैंने इसलिए ओपन किया है जाके जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं आप लोग अंडरलाइन कर सके। दैट इज वाई नाउ वी हैव टू डिस्कस, सॉरी, we have to discuss here about a minerals distribution. So if you see carefully, at first here given about a distribution of ferrous mineral. In types of minerals we have covered na, under the metallic and non-metallic. After that in metallic, ferrous, non-ferrous. So at first we will discuss about ferrous mineral. Which minerals? Ferrous. After that we will discuss about the non-ferrous. So in ferrous, two example is given here. In ferrous, two examples are there. That is your iron ore and magnesium. Which are those two? Iron ore and magnesium. Let's discuss about iron ore. What is the production of iron ore? What is the position of India in the production of iron ore? So India is keeping one of the important position in the world in the production of iron ore. Is it clear? It is one of the leading country after USA, China in the production of a iron ore. It's okay. Or, but in India, consumption of iron is very less. Consumption of iron is very less. As a result, India is exporting those iron in its raw form only. India is exporting that iron ore only from our country to the different countries. And the country which is importing largest iron ore from our country, that is Japan. That is Japan. Japan is importing its maximum iron from our country India, because in India good quality of iron is found. And quality of iron is determined by its ore. How much amount of iron is extracted from that rock? उस चट्टान के टुकड़े से जब हम उसको स्मेल्ट करते हैं और उसको जब प्रोसेस में डालते हैं, where the iron is extracted from its ore, how much iron we are getting from that? On that basis, iron is categorized into different groups. And in India, the iron which is found, that is called by hematite and magnetite. Iron which is found in India, that is known by hematite and magnetite. What are the qualities? These are the top qualities of iron ore, which is containing approximately 60 to 70% of iron in its ore. ठीक है, हेमाटाइट में सबसे ज्यादा, मैग्नेटाइट में उससे कम. These are the percentages. On that percent basis they are categorized. बाकी इसके बाद जो है आपके उनके परसेंटेज बहुत कम है. ठीक है, तो these quality of main two ore types which is found in large quantity in India, that is your hematite and magnetite. And already I have told you, India is keeping position in the world in the production of iron ore. Understood till here? आई बात समझ में यहाँ तक? But in India, consumption of iron is very less. As a result, India is exporting those iron to the different countries. Now, what is the most important things which we have to, on which we have to focus? That is distribution of iron ore in India. What is that? Distribution of iron ore in India. There are 4 belts. How many belts are there? There are 4 belts about the distribution of iron ore. Now I am going to give about those belts. At first I will write this side and after that I will show you. ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर रेड से लिखूंगी तो आप लोग को नजर आ जाएगा. बाद में आप लोगों को दिखा भी दूंगी. Production already completed. Let's discuss about the distribution of iron. अच्छा, before going to the distribution, let's discuss about its utility. What is the utility of iron? Can anyone tell me? आप में से कोई बता सकते हैं? Utensils, weapons, these are the very small.
Iron is not produced. Of course, it is prepared for that, but iron is not produced for that purpose. That is not the main motto. For the big infrastructures, iron is utilized for the making of manufacturing a small nail to the big pillars. जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, whether it is your dam or it is bridges or it is whatever the different kinds of, the base is dependent on iron, on those iron rods. Even our houses are also dependent on those irons. हमारे ये ईंट और सीमेंट और गिट्टी पे नहीं हमारा घर टिका हुआ है, वो घर तुरंत गिर जाएगा. घर का मेन जो नींव है, जिसपे उसका मेन लोड है, दैट इज ऑन इट्स पिलर. और पिलर में क्या है आपका? आयरन रॉड्स. यस, आयरन की रॉड्स. देन आफ्टर, apart from it, there are so many different uses, and that is the reason iron is considered as the backbone of the infrastructure or manufacturing in the areas. Iron is considered backbone क्योंकि iron वो solid और hard material है जिससे सारे infrastructure सबकी develop होती है. Apart from it, it is used for making machineries, tools, weapons, utensils, etc. That is the utility of iron. ठीक है? That is the utility of iron. Now, what are those 4 different belts? आप लोग चाहे तो कॉपी में लिखते जाइएगा. First belt. In first belt, name of the belt is your Jharkhand plus Odisha. क्या है आपका फर्स्ट बेल्ट? झारखंड प्लस उड़ीसा. ठीक है, ये स्टेट है. लेकिन क्या पूरा झारखंड? नो, नॉट द कंप्लीट झारखंड. क्या पूरा उड़ीसा? नो. सदर्न पार्ट ऑफ झारखंड एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, विच आर द बॉर्डर एरियाज ऑफ ईच अदर. कौन सा वो एरिया है आपका? झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का उत्तरी भाग, जो झारखंड और उड़ीसा के बीच का बॉर्डर है, वो रीजन है इसमें. और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है आपका सिंहभूम. कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? सिंहभूम. ठीक है, आपके बुक में जगह का नाम लिखा हुआ है गोवा, मेंशन है, वो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है. वो कहां है? वो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है. और आपका ओडिशा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मयूरभंज एंड केंदुझर. मयूरभंज एंड केंदुझर. सुंदरगढ़ बेटा, वहां पर आपका बेसिकली वो आयरन ओर के लिए है. उसका आयरन ओर कम है, वो दूसरे के लिए है, मैं बताऊंगी आपका. मैग्नीशियम के लिए है. ठीक है, तो ये आपके लिए. आप ज्यादा आप मत याद करिए, उतना ही करिए जो आराम से हो. यहां देखो ना बेटा, उसको छोड़ो भी बुक, इसको लिखिए आप लोग, आसान हो जाएगा आपको याद करना. विच इज द फर्स्ट बेल्ट? फर्स्ट बेल्ट इज द स्टेट झारखंड एंड उड़ीसा. अब है कि झारखंड का कौन सा रीजन? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट. उड़ीसा का कौन सा रीजन? मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट. फर्स्ट बेल्ट इज कंप्लीटेड. फर्स्ट बेल्ट इज कंप्लीटेड. ये आयरन और डिपोजिशन का हमारा पहला बेल्ट है, पहला क्षेत्र. बेल्ट मींस व्हाट? रीजन, एरिया फ्रॉम वेयर आयरन ओर इज एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, और यहां से जो आयरन ओर निकलता है उसका एक मेजर पार्ट है इन आवर कंट्री, इट इज यूटिलाइज्ड. आपका बोकारो आयरन स्टील प्लांट, जमशेदपुर आयरन स्टील प्लांट, दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में है, बोकारो जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला जो उड़ीसा में है, और भिलाई जो आपका छत्तीसगढ़ में है. वो सारे आयरन स्टील प्लांट्स इन्हीं ओर के आसपास लोकेटेड है, इन्हीं के चारों तरफ वो लोकेटेड है. तो इसलिए यहां से जो आयरन ओर निकलता है उसका मेजर पार्ट इज यूटिलाइज्ड इन आवर ओन कंट्री. अंडरस्टूड? इज एनी डाउट? Our second belt is, इसके बाद आप लोग लिखिएगा, second belt is state
छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र। क्या लिखेंगे? मैंने बात करने के लिए नहीं बोला, लिख रहे हैं आप लोग। आई एम कमिंग टू चेक योर कॉपीज। सबकी कॉपी चेक करूंगी अभी मैं, बता रही हूं। उड़ीसा के नीचे आपका है मयूरभंज, मयूरभंज एंड केंदुझर। इसको इरेज कर दो, उस पर लिख दो, बाद में इसको ओपन कर लेंगे। ओके फाइन, ओके ओके, गॉट इट। चलिए अभी मैं इसको कर देती हूं, मैं आ जाती हूं उसमें, बाद में यहां पे अंडरलाइन करवाते समय मैं आ जाऊंगी। अच्छा बैक नहीं हो रहा था, मुझे डायरेक्ट उस पे आ जाना था। एनीवेज होम पे आ जाते हैं, छोड़ो होम पे आ गया, छोड़ो। जस्ट अ मिनट, कमिंग टू द व्हाइट बोर्ड। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ तो समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर मैं वहां पे अंडरलाइन करवा दूंगी आपको। इट्स ओके। चलिए, तो व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, ठीक है। क्या है अब आपका फर्स्ट बेल्ट? दे आर द 4 डिफरेंट बेल्ट्स एज आई हैव टोल्ड यू। फर्स्ट बेल्ट इज योर झारखंड, झारखंड एंड ओडिशा, ठीक है। फर्स्ट झारखंड का जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट है आपका सिंहभूम, ठीक है। और उड़ीसा की जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका मयूरभंज एंड केंदुझर। It's okay now? That is clear? Our second belt is Chhattisgarh, sorry, Chhattisgarh plus Eastern Maharashtra. क्या है दूसरा बेल्ट हमारा? छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र। अब छत्तीसगढ़ की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? छत्तीसगढ़ की यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है आपका दुर्ग और दूसरा रीजन कहलाता है बैलाडीला, बैलाडीला, ठीक है, बैलाडीला। एंड जो उड़ीसा का आपका, जो उड़ीसा का आप क्या सब गायब है? छत्तीसगढ़ से सेकंड बेल्ट से शुरू करती हूँ। फर्स्ट बेल्ट लिख दिया ना आप लोग? चलिए सेकंड बेल्ट से शुरू करती हूँ। सेकंड बेल्ट है दैट इज अवर छत्तीसगढ़ प्लस महाराष्ट्र, ईस्टर्न महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। ये आप लोग देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट्स लिख दे रही हूं। डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका दुर्ग एंड हियर बैलाडीला, इट्स ओके। और ईस्टर्न महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको करना है चंद्रपुर, इट्स ओके। आया समझ में? बस इतना ही नाम याद करते चलिए, ज्यादा में ध्यान दीजिएगा। इतना करेंगे बहुत अच्छा नंबर आएगा। चंद्रपुरा, चंद्रपुर एक्चुअली है वो, नॉट चंद्रपुरा, इट इज चंद्रपुर। लिखते चंद्रपुरा, चंद्रपुरा, बट प्रोनाउंसिएशन इज चंद्रपुर। तीसरा बेल्ट
आपका है वेस्टर्न महाराष्ट्र प्लस गोवा। ठीक है, और यहां पे जो रीजन है वो है आपके रत्नागिरी हिल्स, रत्नागिरी हिल्स। समझ में आ रहा है? इस एरिया से जितना भी आयरन और एक्सट्रैक्ट होता है वो पूरा की पूरा जापान को एक्सपोर्ट हो जाता है, और जिस पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है उसे कहते हैं हम मर्मागांव। किस पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है? मर्मागांव। इस रीजन से जितना भी आयरन और निकलता है वो पूरा, इसके अलावा जो इस रीजन से निकलता है उसका भी कुछ हिस्सा जापान को एक्सपोर्ट होता है, और ये एक्सपोर्ट होता है आपका दो पोर्ट से। एक है आपका पाराद्वीप, दूसरा है आपका विशाखापत्तनम। इट्स ओके, पारादीप एंड विशाखापत्तनम। पारादीप उड़ीसा, विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश, जिसको वाइजैक भी कहते हैं। विशाखापत्तनम को शॉर्ट में वाइजैक भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा बेल्ट है। एंड द फोर्थ बेल्ट इज ओनली द स्टेट कर्नाटका। कौन सी स्टेट है? सिर्फ एक स्टेट कर्नाटक, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स यहां पर 3 याद करने हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट याद करने हैं? इसका पहला डिस्ट्रिक्ट आपका है बेल्लारी, दूसरा है आपका चित्रदुर्ग, और तीसरा है आपका चिकमंगलुरु। ये आपके टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कर्नाटका का। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, दुर्गा जी का चित्र, चिकमंगलुरु, चिक्कामंगलुरु। यस, ऐसे याद करना है। ठीक है, यू कैन फॉलो दिस ट्रिक से आराम से याद हो जाएगा। चित्रदुर्ग कैसे करना है? चित्र मतलब क्या होता है? दुर्ग। किसका चित्र? सॉरी, मत जाइए उतना, छोड़ दीजिए। जितना बोल रही उतना करिए। एनफ इट इज। जितना दिया हुआ सब नहीं रटना है, पढ़ना उतना ही है जितना से काम हो जाए। ठीक है, और जितना टिपिकल नाम लीजिएगा उतना फिर आपका मुश्किल हो जाएगा। इट्स ओके। मैंने शुभम या प्रियांशु का चित्र नहीं बोला है, हिमांशु का, कि इतना खुश हो रहे हो। मैंने दुर्गा का ही बोला है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो दुर्गा। चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, बेल्लारी। ठीक है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु। These are the 4 different belts। और इसके अलावा कर्नाटका का जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका माइनिंग एरिया है, दैट इज कॉल्ड कुद्रेमुख माइन। कुद्रेमुख माइन, जो कि एक संस्कृत वर्ड है। ये आपका संस्कृत वर्ड है। कुद्र का मतलब होता है हॉर्स, मुख का मतलब चेहरा, मुख। और ये जो पहाड़ी का शेप है आपका, बैलाडेरा भी इसलिए नाम पड़ा है। ये बैलाडेरा है ना, इसका भी नाम इसीलिए पड़ा है। ये पहाड़ ऐसा दिखता है। बैल का ये जो पोर्शन होता है ना, पीठ का जो अपर एरिया निकला हुआ, उसको कहते हैं। ठीक है, उसी के शेप में वो आपका पहाड़ है, इसलिए उस रीजन का नाम ही पड़ गया बैलाडेरा। ठीक है,
और आपका ये खुद्रमुख, दिस इज वन सेकेंड संस्कृत वर्ड, उस पहाड़ी का शेप कैसा है, जैसा अपीयर होता है कि घोड़े का मुंह है वो। हॉर्स का जो मुंह होता है फेस से, बिल्कुल ये हॉर्स के फेस की तरह अपीयर होता है। दैट इज वाई दैट माइनिंग एरिया इज कॉल्ड बाय खुद्रमुख माइन। इट्स ओके, बहुत डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस मच डिटेल। आई बात समझ में? लिखने हैं सब लोग? मैंने बात करने के लिए नहीं बोला, मैंने लिखने के लिए बोला कि आप में से कोई मुंह से भी लिख रहे हैं क्या? यस बेटा। गोवा और महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है कोस्टल एरिया, ये दोनों ही रीजन आपकी जो रत्नागिरी हिल्स रन करती हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट भी है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो उस रत्नागिरी हिल्स के पास ही है, और उसी का एक्सटेंशन है आपका गोवा तक। उन हिल एरिया से जो किया जाता है वो महाराष्ट्र और गोवा दोनों को कवर करता है, ठीक है। दैट इज वाई सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉट मेंशन्ड हियर, टुगेदर रत्नागिरी हिल्स में रीजन इज मेंशन्ड हियर कि जो आपके वेस्टर्न घाट की हिल्स है ना, सह्याद्री, रत्नागिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमन, ये पूरा जो रेंज चला रहा है, इसी में जो रत्नागिरी हिल्स है उससे जो आयरन और एक्सट्रैक्ट होता है वो आपका महाराष्ट्र और गोवा रीजन में पड़ता है। इट्स ओके, समझ में आ गया यहां तक? डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लियर? लेट डिस्कस समथिंग फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, ठीक है, वहां पे कुछ अंडरलाइन करवा देती हूं। अब हम लोग यहां से थोड़ा सा बैक होते हैं, सेव करके ओके करके बाहर निकलो। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर आप बुक पर। बुक ऑलरेडी हमारा एनसीईआरटी खुला हुआ था, अच्छा मैंने बंद कर दिया था ना इसीलिए। अगेन आई हैव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस। चलो शुक्र है, आ जाओ इंडियन पीपल इकोनॉमी। अब ये भी पागल हो गया। How it is possible that no data is there? It's okay. $28. Very good. This time I will not go back so that I can open the page immediately. नहीं चाहिए, आप जाइए अपने घर। I don't want you. Yes, now our chapter is coming. It is downloading. Okay, fine. बोलिए बोलिए, क्या हुआ यशु महाराज? Okay. So here we all were discussing about this iron ore, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए बुक से, जो मैंने 4 बेल्ट बताया नोटिस करिएगा यहाँ पर, ठीक है। पहला बेल्ट आपका बता रही हूँ, आ रही हूँ आपके बेल्ट पे भी आ रही हूँ, थोड़ा सा मैं पेन को भी ले लेती हूँ ताकि दोनों से काम साथ साथ हो सके। लेट इट ओपन, तुम आ जाओ नीचे। यस, पहले सबसे पहला बेल्ट क्या आपको लिखाया? उड़ीसा झारखंड। इट्स ओके। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले लिख दिया आपका द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा एंड झारखंड, यहाँ लिखा है ना स्टेट्स ऑफ उड़ीसा एंड झारखंड, इसका सिर्फ स्टेट का नाम दे रहा। लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लियर किया सीरीज ऑफ द हिल्स ऑफ रेंज ऑफ है सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार, लिख रहा है, दे रहा है ना आपका, मैंने यही नाम लिखवाया ना आपका, वो एक्चुअली केंदुझर इट इज, ठीक है। और अभी आपको फिर से और क्लियर करवाती हूँ इसको, पहले यहाँ का काम कर लेते हैं। तो ये पहला बेल्ट हो गया आपका। दूसरा बेल्ट है, अब इसको हम लोग क्लियर करते हैं तब आपको समझ में आता जाएगा। दूसरा बेल्ट मैंने बताया आपको छत्तीसगढ़, ईस्टर्न महाराष्ट्र। अब आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, महाराष्ट्र यहाँ पर अभी यहाँ नहीं है, बट महाराष्ट्र इज ऑल्सो देयर। इट्स ओके। रीजन कौन सा है आपका? रीजन में हम लोग यहाँ कर लेते हैं, अच्छा उनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको दिखा दूंगी आप आगे उस पे।
यहाँ पे उनका मेंशन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट मैंने कर्नाटक आपको नाम बताया 4th बेल्ट में, ये कर्नाटक है। वो तो दुर्ग का, अच्छा यस यस, लेफ्ट फादर, यस दुर्ग का नाम दिया हुआ है। दांतेवाड़ा बालाडीला ये दिया हुआ है ना, मैंने दुर्ग और बालाडीला 2 नाम दिया है, दांतेवाड़ा मैंने छोड़ दिया। जरूरी नहीं है कि जितना नाम आपके बुक में दिया हो उतना सब रटे ही। छत्तीसगढ़ का आपका दुर्ग और बालाडीला आ गया, ठीक है, ये 2 नाम मैंने आपको करवाया था। तीसरा बेल्ट मैंने महाराष्ट्र और गोवा बताया था आपका, गोवा भी आपका लिखा हुआ है। इसका एक बार मैं फिर से इसको क्लियर करती हूँ, फिर आपको आ जाएगा। 3rd बेल्ट में मैंने गोवा बताया था और आपका महाराष्ट्र बताया था। डिस्ट्रिक्ट मैंने नहीं बताया था, मैंने सिर्फ रत्नागिरी हिल्स बताया था, उसके बारे में आई डोंट थिंक यहाँ पे मेंशन किया होगा। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको। कमिंग टू द नेक्स्ट कर्नाटका, 4th बेल्ट में आते हैं। 4th बेल्ट फिर आपका क्या था, आपका कर्नाटक था, ठीक है। कर्नाटक का आपका देखिए बेल्लारी मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ आपका। इसके मैंने कुद्रेमुख माइन क्या किया, बाबा बुदन हिल्स के ऊपर जो है एरिया में, फिर आपका कुद्रेमुख माइन में है। कुद्रेमुख माइन से ही आपका ये जो चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में जो आता है कुद्रेमुख माइन, चिकमंगलुरु मैंने लिखवाया था आपको, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट का ही वो कुद्रेमुख माइन है। इसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फिर से थोड़ा और, पार्ट्स ऑफ है शिवमोगा, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग भी मैंने आपको लिखवाया, ठीक है। शिवमोगा को छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि शिवमोगा को हम लोग दूसरे के लिए फिर पढ़ेंगे, मैग्नीज के लिए पढ़ेंगे। शिवमोगा में मैग्नीज ज्यादा है आयरन ओर से, इसलिए मैंने आयरन ओर में शिवमोगा नहीं दिया। फिर मैंने चित्रदुर्ग आपको दिया, ठीक है। तो ये 3 नाम कर लीजिए, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु, दैट इज एनफ। अब थोड़ा सा मैं और आपको बताती हूँ, इसको और भी क्लियर करवाती हूँ रीजंस को। और जो थोड़ा सा ये देखिए आपका, दैट इज योर मेटालिक मिनरल्स, फेरस, इसमें आयरन और मैग्नीज दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए। मैंने हमें इतना ही चाहिए, 4 मैंने बेल्ट्स बताया, ठीक है। 4 बेल्ट में वो कौन कौन सा बेल्ट था, ये आपका पहला बेल्ट, ठीक है, झारखंड उड़ीसा, मयूरभंज है, केंदुझर है। मैंने केंदुझर क्यों लिखवाया समझ में आया आपको? सुंदरगढ़ आपका आयरन ओर का नहीं है, इसलिए सुंदरगढ़ मैंने नहीं लिखवाया। मैंने आपको मयूरभंज दिया, ये आयरन ओर का सिंबल है, ये आयरन ओर का सिंबल है। और ये गोवा जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये झारखंड में है, ये आपका सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट में है गोवा। जो माइनिंग एरिया है वो गोवा कहलाता है, सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट का। मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखवाया। आप सिंगभूम में भी लिख कर आएंगे तो आपको कटेगा नहीं, आपको पूरा की पूरा नंबर मिलेगा। पहला बेल्ट हो गया, दिस इज योर फर्स्ट बेल्ट। दूसरा बेल्ट मैंने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बताया था, ये देखिए आप है छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न महाराष्ट्र, ये पूरा आपका महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र का पार्ट है। इसमें कुछ पार्ट हल्का तेलंगाना को टच कर रहा है, बॉर्डर एरिया टच कर रहा है, लेकिन मेजर पार्ट क्या है हमारा, बेल्ट क्या है, वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मैंने दुर्ग लिखवाया, बालाडीला लिखवाया। और आपका चंद्रपुर ये महाराष्ट्र का है, ये देखिए बॉर्डर एरिया, ये बॉर्डर लाइन है, चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र का है। तीनों डिस्ट्रिक्ट आपको लिखवा दी थी। ये आपका क्या है, ये आपका दूसरा बेल्ट है। तीसरा बेल्ट मैंने महाराष्ट्र और गोवा बताया आपको, ये है आपका रत्नागिरी मैंने आपको बताया, और ये गोवा का है। ये एक्चुअली रेंज पूरा रत्नागिरी हिल्स का, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट भी है आपका, इसलिए यहाँ पे किया हुआ है। और ये मरमागांव देखिए पोर्ट बना हुआ है, जिस पोर्ट से आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं हम, जिस पोर्ट से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है वो पोर्ट भी बना हुआ है। मैंने आपको लिखवा भी दिया था, मरमागांव से पूरा जापान को। इसी तरह से आप यहाँ देखिए, ये विशाखापत्तनम, ये पारादीप बना हुआ है ना, पारादीप विशाखापत्तनम मैंने दोनों बताया। ये कौन से एक्सपोर्ट करता है, जो ये इस एरिया से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से होता है, क्योंकि इसके लिए ये पोर्ट आसान है, पास है, बजाय इधर जाने के। तो ये आपका हो गया तीसरा बेल्ट है, ठीक है। और ये आपका हो गया चौथा बेल्ट। मैंने बेल्लारी लिखवाया, चित्रदुर्ग देखिए लाइन से नीचे आ रहा है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, इसीलिए मैंने इस सीक्वेंस में आपको दिया। जब लोकेशन में आए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैप पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, दिस ऑल प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैप पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैप में भी आपका आएगा तो आप लोग इसको कर सके, इसलिए मैंने सिर्फ उन नाम को दिया जो मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैप के टॉपिक्स में है। तो ये आपका क्या हो गया,
ये चौथा बेल्ट हो गया। बेल्लारी बिल्कुल कर्नाटक का, कर्नाटक का बाउंड्री यहां से लेके यहां तक है, ये एक बाउंड्री है, ये दूसरा बाउंड्री है। इसके बिल्कुल बीचों बीच में जो तमिलनाडु के सॉरी आंध्र प्रदेश के बाउंड्री को टच कर रहा है, बेल्लारी यहां है आपका। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का बाउंड्री टच कर रहा होगा, बिल्कुल कर्नाटक के मिडिल में, वो आपका बेल्लारी है। बेल्लारी से थोड़ा हम साउथ आ जाएंगे, हमारा चित्रदुर्ग आ जाएगा। बेल्लारी से साउथ आगे चित्रदुर्ग है, लेकिन बिल्कुल चित्रदुर्ग के आपका वो प्लेस है जहां तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक की बॉर्डर टच कर रही है, वो आपका चिकमंगलुरु है। ये आपका प्लेस है। इसी से थोड़ा सा ऊपर देखिए, ये आपका है, ये प्लेस है जहां पर ये तीनों बॉर्डर टच करता है, चिकमंगलुरु। ठीक है, तो ये मैप आपका थोड़ा बड़ा इसलिए वो दिख रहा है। अगर आप लोकेशन में यहां भी लोकेट करेंगे मैप पे, तो ये रॉन्ग कंसीडर नहीं होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो एक्सपोर्ट होता है वो मैंगलुरु, ये मैंगलुरु सी पोर्ट इसीलिए डेवलप ही किया गया। ये मरमा गांव और ये मैंगलुरु सी पोर्ट्स को डेवलप ही किया गया है इन मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। किसके लिए? मिनरल्स को। बिकॉज दिस ऑल मिनरल्स आर हैवी एंड बल्की मिनरल्स। ये क्या है आपकी? हैवी एंड बल्की है। जगह भी ज्यादा ले रही है क्योंकि ये आयरन और फॉर्म में है, रॉक्स के फॉर्म में है, प्लस वजन भी इनका है, तो इनको हम दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई in the nearer area seaports has been developed so that easily it can be transported. Easily it can be transported to the different countries. आगे बात समझ में? और मैंने अब आयरन और क्लियर। दूसरी चीज सुनिए जाए, मैग्नीज बिकॉज इट इज ऑल्सो हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन। इनके अंदर भी आयरन की प्रॉपर्टीज है, इसलिए मैग्नीज भी आपका ज्यादातर उन्हीं एरियाज में है जहां कहीं आयरन ओर का डिपोजिशन है, जहां कहीं आयरन ओर का डिपोजिशन है। एक दो प्लेसेस एक्सेप्शन में अलग भी हैं, बट मेजर एरियाज आप देखोगे तो आपका मैग्नीज का उन्हीं रीजन्स में है वेयरएवर आयरन ओर डिपोजिशंस आर देयर। फॉर एग्जांपल केंदुझर, यहां के देखिए केंदुझर, सुंदरगढ़ नियर टू आयरन ओर, बहुत दूर नहीं है वहां से मैग्नीज डिपोजिशन। ओडिशा एंड इट इज ओनली ओडिशा, ठीक है। मैग्नीज का डिपोजिशन ओनली इन ओडिशा। कहां कहां आपका? केंदुझर एंड सुंदरगढ़। दूसरा आप आ जाइए छत्तीसगढ़ में, मैग्नीज का डिपोजिशन आपका छत्तीसगढ़ में सॉरी नहीं है, आपका ये बॉर्डर एरिया है महाराष्ट्र, ये बालाघाट आपका इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर जहां टच हो रहा है और छत्तीसगढ़ का बालाघाट आपका वहीं पर है। ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका मध्य प्रदेश है, बालाघाट। कैसे याद करेंगे, लोकेशन कैसे याद करेंगे? तो कुछ ट्रिक्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ ए मैग्नीज। तीसरा आपका महाराष्ट्र में जो मैग्नीज का है दैट इज गोवा, रत्नागिरी हिल्स पर है गोवा, अगेन आयरन ओर बेल्ट, ठीक है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको शिवमोगा जो नहीं लिखवाया था आयरन ओर में, ये आपका शिवमोगा फॉर मैग्नीज है, दिया हुआ शिवमोगा, शिवमोगा याद करना भी आसान है, ठीक है। शिवा लिखिए फिर मोगा लिख दीजिए, हो गया शिवमोगा। और आपका मैग्नीज का सिर्फ ये 4 जगह याद कर लीजिए, दैट्स एनफ, 5वां करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन सा? ओडिशा का 2 डिस्ट्रिक्ट केंदुझर एंड सुंदरगढ़, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट बालाघाट, गोवा इटसेल्फ गोवा, एंड देन कर्नाटक का शिवमोगा। यही 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4-5 प्लेसेस हैं जो आपको याद करना है अबाउट डिपोजिशन ऑफ मैग्नीज। और मैग्नीज का रोल क्या है, इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज अ अलॉय इनसाइड द आयरन इंडस्ट्री। इसका यूज भी जो मेजर यूटिलाइजेशन है आयरन में ही किया जाता है। आयरन को और से सेपरेट करने के लिए मैग्नीज को मिक्स किया जाता है और उसको सॉलिडिफाई करने के लिए। और जब आपका 10 टन ऑफ आयरन में 1 टन ऑफ मैग्नीज मिक्स किया जाता है तो आपका स्टील बनता है। वो क्या बनता है? आपका स्टील बनता है। तो मैग्नीज का यूज होता है टू मेक द आयरन हार्डर
अदरवाइज अगर मैग्नीज नहीं मिक्स किया जाएगा आयरन में तो आयरन आपका बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हो पाएगा, उसके अंदर रस्ट लग जाएगा, वो जल्दी टूट जाएगा। इसलिए मैग्नीज उसे मिक्स किया जाता है। लेकिन ये मैग्नीज की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है तो चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ स्टील व्हिच इज द alloy ऑफ आयरन और आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम का रोल है। दिस इज अबाउट दैट। इट्स ओके। देखिए आपका लिखा भी है आयरन और फील्ड है, जो मैंने बेल्ट बताया ये शैडो क्या है, आयरन और फील्ड है। ये आपका आइकन है आयरन और माइनिंग एरियाज, ये आइकन है आपके एक्सपोर्ट एरिया फ्रॉम वेयर द आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड, एंड दिस इज योर मैग्नीज एरिया। दिस इज योर मैग्नीज एरिया। आगे बात समझ में? ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया? चलिए अब बुक में भी जैसा मैग्नीज को हम लोग बुक में जैसा मैग्नीज को मैं दिखा देती हूँ आपको। क्या है मैग्नीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, ये मैग्नीज का इतना ही डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, क्या है आपका, इट इज इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। मैंने यही पढ़ाया था आपको। इट इज एन इंपॉर्टेंट विच इज यूज्ड फॉर द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए फेरो एलॉयज। इट इज यूज्ड एज एलॉय। इट्स ओके। आफ्टर ये तो इसका यूटिलाइजेशन हो गया। और ये कहां एक्चुअली सबसे ज्यादा इसका डिपोजिशन है, तो मैग्नीज का जो डिपोजिशन मिलता है दैट इज ऑफ धारवाड़ सिस्टम। व्हाट इज दिस धारवाड़ सिस्टम? इट्स अ टाइम पीरियड है जो हमने ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड पढ़ाया था क्लास 11th में, अगर आपको याद हो तो धारवाड़ सिस्टम इज दैट टाइम पीरियड वेयर द रॉक्स आर फॉर्म्ड, सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो धारवाड़ सिस्टम पे जो है उस टाइम पीरियड में आपके इस मैग्नीज का फॉर्मेशन उसी टाइम पीरियड का सबसे ज्यादा है। इट्स ओके। देन आफ्टर व्हाट इज गिवन हियर, व्हिच आर द इंपॉर्टेंट मेजर माइंस से, दैट इज इन ओडिशा। इट्स ओके। आफ्टर दैट इट इज इन ओडिशा, व्हाट आर दोस, केंदुझर, सुंदरगढ़। मैंने ये दोनों मैप से बताया, बस ये दोनों को याद करिए, बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी सबको नहीं पढ़ना, इतना करिएगा, ये बहुत है। दिस इज अबाउट योर मैग्नीज। After that manganese is over. This is the map which I have already explained to you. Ferrous is clear? आगे आ रही हूँ। Ferrous is clear? ठीक है? इसमें फिर आपका मैग्नीज का थोड़ा सा और दिया हुआ, नॉन फेरस में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। फिर मैग्नीज का और थोड़ी सी एरिया है, वो कौन कौन सी है आपका, चिकमंगलुरु के आसपास, एंड द इम्पॉर्टेंट वन शिवमोगा ऑलरेडी आई हैव गिवन यू। जो शिवमोगा आपका इम्पॉर्टेंट है, ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ। इसके बाद फिर आपका रत्नागिरी हिल से, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट पे रत्नागिरी हिल से में विच इज मेंशन्ड देयर। देन आफ्टर योर मध्य प्रदेश का जो बेल्ट है आपका, दैट इज बालाघाट। इट्स ओके। दीज आर द इंपॉर्टेंट एरिया विच आर नोन फॉर द डिपोजिशन ऑफ मैग्नीज। आगे बात समझ में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेरस मिनरल्स आर कंप्लीटेड। नॉन फेरस इन द नेक्स्ट क्लास। अब फटाफट होगा, फिर टाइम लगेगा कहां पर, गोल्ड पे। इट्स ओके। अब जहां लिखवाना होगा वहां पे आपको बता दूंगी और आप लोग कहूंगी कि आप लोग लिख लीजिए। सो फॉर टुडे ओनली दिस मच। कुछ पूछना है तो बोलिए। किसका? नहीं, माइनर नहीं पूछता माय डियर, मेजर पूछता है। माइनर से उसको मतलब नहीं है, माइनर नहीं पूछता, वो आपके नॉलेज के लिए आपको बता दिया है, बट माइनर। हाँ बोलिए बेटा। मैग्नेटाइट आयरन और दोनों बेटा साथ साथ ऑलमोस्ट चलते हैं। मैग्नेटाइट आपका ये पूरा आपका मैग्नेटाइट हेमाटाइट है, पूरा आपका उस छत्तीसगढ़ और क्या बोलते हो झारखंड उड़ीसा में, छोटा नागपुर प्लेटू कह लीजिए, तो छोटा नागपुर प्लेटू है पूरे जो आपका है वही है। और दूसरा आपका डेक्कन प्लेटू, जिससे आपका कर्नाटक का एरिया आ गया। ठीक है, डेक्कन प्लेटू जो कि कर्नाटक कवर कर रहा है, एंड छत्तीसगढ़ प्लेटू जो कि आपका झारखंड छत्तीसगढ़ कवर कर रहा है। पूरा आपका मैग्नेटाइट और हेमाटाइट ही है आपका। इट्स ओके। यस बेटा बोलो।